भगवती माता निर्मला देवी की जय। बैठिए। क्या यहाँ के बच्चे वगैरह अंदर नहीं आ सकते? माता जी ये जो हैं ये विलेजेस हैं but they're not established Saint Yogas, so that's why they just had your darshan but they're not continuing. They're going away now. अच्छा पीछे से बैठ जाओ, फिर तो पीछे से बैठ दर्शन होएंगे ना, हम दर्शन होएंगे उन चली जाओ उन डले आना परसों गगन मिस्टर सामन मिस्टर गगन पानी के पेन पीछे बैठ जाओ बस इतों इस पास चली जाओ इतों चली जाओ उन परसों डले आना खिड़की खुलवा दीजिए। I will open the door. खुलवाई दीजिए। उधर की खिड़की खोल दीजिए जरा। ये आगे अंग्रेजी में बोले? हिंदी में। अच्छा। ये लोग पीछे जाके बैठ जाओ, इधर खड़े नहीं, उधर पीछे जगह है, उधर से बैठ जाओ। They shouldn't see, no, that's not proper. Either they should go away or sit down. नुकसान कर जाएगा। हाँ, बैठिए, अगर वो लोग बैठना चाहे बैठने दो बेटा, भक्ति भाव वाले हो तो पटाख से पार हो जाएंगे, उनको क्या है, तो बहुत श्रद्धा है। यहाँ के लोग तो एकदम फूलों जैसे को सब समझता है देवी का। वो है ही सहयोगी। The people over here are so different, so nice, special quality people. We cannot say no to them. They are beautiful people, very beautiful. They will enter into the kingdom of God. ये क्या? What is it?
थोड़ा अंग्रेजी में बोलते हैं थोड़ा. Today we are sitting at the foothill of Himalayas. Himalaya is the father of your mother. And since I have come here, the feeling of returning to the father is making me feel extremely proud of you, but up to a point. Then it gives up. This is what has happened in this area before also. There were many kings who ruled these areas where there were people who worshipped the goddess and lived a righteous, innocent life, and those who tried to insult the mother perished forever and ever. We are so fortunate today that Yogi Mahajan has called us here in this beautiful place, which is so vibrating, is so much full of the blessings of the great saints who are practicing meditation here. They have worked out the meditation for us. Through their ascent, they have achieved a road for us. Our Sushumna improved because of their blessings. Because they have worked so hard, our Sushumna has become so accessible, so easily possible for us to ascend. Today you may not see them, but I see them clearly. All my gratitude to them that they, in this atmosphere of purity, came but lived in these remote corners without any shelter, without any support, without any help, for days together. For you, Sahaj Yoga has become so easy. You are all easy chair spiritual seekers. There is no struggle, there is no problem. Wherever you are, you get your realization. They have made it so easy. They have done it for you. But that does not mean that you should take Sahaj Yoga for granted. Today, in this great place, let us think of the new visions I have about Sahaj Yoga. Sahaj Yoga has to become a great Vishwa Yoga, Maha Yoga, the bubbling energy of divine in the new tree of Vishwadharma. For that, you people have to sacrifice, have to come up, not to be easy chair Sahajogis, but have to give up many things that are lying within you, which you have not yet harnessed and looked after. It pains me to see the way Sahajogis take Sahaj Yoga for granted. It's not possible. With such mediocres, one can achieve much in life. But by God's grace, after coming here, I saw the village people. I knew I am at the right spot. First will be the last, Christ has said. First will be the last, because the first come as if thinking that they are something great, that they have shown some great things. But they do not know what is to be achieved. The innocence, the simplicity, the overpowering of your body. If your body tries to overpower you, you are no more a Sahajogi. If your mind tries to overpower you, then you are no more a Sahajogi. If your heart tries to overpower you, then also you are not Sahajogi. But through all these three instruments,
You should work as if you are the master of these three instruments and not the slave of these things. This is a very, very important thing, because Sahaja Yoga has too many blessings. It gives you all kinds of prosperity, all kinds of beautiful blessings, all kinds of protections, miracles happen in your life, but we take Sahaja Yoga for granted. The first and foremost thing, I feel sorry sometimes when I hear that people insult each other for nothing at all, hurt each other, talk to others in such a manner that doesn't behove a Sahaja Yogi. I have never talked like that to people in that curt manner. Why should you talk like that to each other? The reason is, inside there is still some sadism sitting down to put down other people. That sadism will make you satanic. It will not make you saintly and godly. It is not a godly quality to behave in that manner. For such people only these 7 powers were born, to slay their ego, to slay their sadistic temperaments, and to make them into beautiful people who will surrender to God and will take to milder methods of attainment. When I came here, I felt I should not go any more to the West. I've had enough of it. I just don't want to waste my time. This place, if I live for a year, I'm sure the whole place will give me so many Sahaja Yogis that even if I struggle for 100 years abroad, I cannot get. But what to do? A mother has to think of all the children, if possible, try to save them as far as possible. That innocence, that simplicity with which they live here, how they are one with the nature, how they move about, come up, you just watch and see how they rise and how they make themselves available for the beauty of this nature to be enhanced. Because they are so congenial, in concord with the rhythm of this place. The whole place is so rhythmically singing the praise of God and the goddesses. I don't know if you are sensitive to it or not, but it is. It is so full of singing and chirping of birds. I see these great mountains who have witnessed the ascent of man. They have witnessed the great penance of these very great saints who lived here. They have witnessed all that man has fought to go towards God, how they sacrificed, how they went into dangers, lived with animals just to achieve this path for you people. We have to thank them and thank all those 7 deities who have created this atmosphere of complete security for these great saints. All these goddesses came on this earth to protect the saints. They deserve it. That's the duty of a goddess, to protect the ones who are striving, who are fighting the way for the seekers. But what is the need to waste time over useless people who have no other seeking but materialism? I do not know how many years it will take for me to convince the Western people about the greatness of the Spirit. I hope with our effort, some of them, very few of them, will be saved. I don't have much hopes of a larger number of people there. I am speaking this in English because I have felt it too much here and disgusted sometimes. The way God has worked, He sent 7 of His powers on this earth, in this area. Also everywhere He sent them. They crucified, they tortured, they did all kinds of things to saints, and they are least bothered about what they did to them.
all those turmoils and hardships through which they have gone, I really felt them within myself, as if my body has gone through that tormenting period. Let us all thank God that He has been so kind, that He gave us realization in our own houses, in our own families. But let us also think about it. What did we do about it? Today I am talking specially for Delhi people, because I may not be able to talk to them. In Delhi, I have heard that people are extremely rude to the new people. I was amazed why thousands come to see me, and then what happens to them? People talk so rudely that nobody can believe that they are Sahaj yogis. I have heard about this even in Kuala Lumpur, the same thing. Not that I have not heard about these things in other places, but in many places I have heard that people are extremely egoistical. They talk to people in such a rude manner that nobody wants to come. And that's why in all these places where there is even one person like that, Sahaj Yoga does not grow. And these people don't want to change themselves. If you tell them anything, they will say, all right, so get rid of us. But why don't they say that we want to change? It is something shocking, the way people are. They have no compassion, no love, nothing. But they are thinking about using this position as a Sahaj Yogi to dominate others, to show off to others. And that's why people do not increase. It's only one thing that attracts people to me is my love and my compassion and my open-heartedness. Those who use strong words and talk strongly to others, thinking as if they are in charge of Sahaj Yoga, must know that if they try all these tricks, they will be suffering very badly. And that no amount of my compassion and love can protect them, because the same powers which come for protection are quite capable of destruction. I want to warn you, all of you, to be gentle, to be kind, to be sweet to others. Don't try to hurt others' feelings. Don't try to be sadistic. Otherwise, it will hurt you very much. It has happened in this place where you are sitting today, in this area. It has happened. I can see all the past that took place. Those people who tried to be harsh and horrible suffered a lot. They had to become gentle. One great saint called Durasa, he was known to be a very hot-tempered fellow. And he meditated, but he was so hot-tempered. He did not live in this area. He lived in the thick forest of Maharashtra. And there he was extremely hot-tempered, used to shout at people, because he thought he has got the realization and he has right to shout at everyone and to make a nuisance out of him. Once he went to the ashram of a Muni called Kashyap Muni, and he had a daughter called Shakuntala. Shakuntala had just married a king, and she was thinking about him. This Durvasa went and called for her. She forgot to answer his call. So he cursed her that the person about whom you are thinking will forget you and you will suffer because of that. He was so angry that she did not attend to him. Still she was in her own mood. And then when he came in, she could not look after him as he wanted to be looked after. This was Durvasa, and he made her suffer a lot. But later on he discovered that he was a man of tremendous temper, and that his feet are going into the hell. There is hell burning under his feet. And that heat made him feel terrible. So he ran towards Himalayas. He came down here near
and he meditated in this place where he just asked for one thing is, "Oh Mother, give me the sweetness, the nectar of your love. Please let me have." He stayed here in a jungle for years together, meditated, and tomorrow, I think day after tomorrow, we'll be having our lecture there. We'll be having our program there. This is Durasa, who came all the way from the south because he couldn't bear the heat that was burning him. That must be something like a cancer or something. In cancer you get this kind of heat. The people who are heated, those who have too much heat, always used to come to Himalayas to cool down, to see the heights of Himalayas, the depths of Himalayas, to see the greatness of creation, to see the smallness of their own being, to become humble, to become extremely humble. And that's what happened to him. He meditated on the greatness of Himalayas, at the lotus feet of Himalayas, and he prayed to Himalayas, "O Lord, you are the one who has given us the greatest of greatest, the highest of highest, to look upon you. You are the one who is a symbol of the heights we have to reach. And I am a person who used to think I am very great till I saw your greatness here, the way you bear the snow upon your head and the way you reach the depths of our hearts." And then he meditated here and he got his salvation. Realization is not sufficient. It is not the salvation. Realization is just the beginning. Salvation comes when we master our body, master our mind, master ourselves in such a way that we become beautiful flowers and the fragrance of our beauty flows and everybody enjoys it. I am speaking this for all the people who are still thinking that they have got realization, they have certain positions in Sahaja Yoga, so they can misbehave with everyone as they like. Please remember that it is not important what you do for Sahaja Yoga, more important what I feel about. If you have to be something greater, humble down yourself. Humbling down is very, very important. Nobody has to think that we can achieve something greater heights by dominating others. This has been very upsetting since I have been in Delhi. I have seen this in and out, and I was surprised that in Delhi still people are so stupid that those who organize, some of them are so harsh. I would request you to humble down, to come down to proper senses and understand that it is your gain if you humble down. Like Durasa, you don't have to stay here in the jungles with the tigers and the lions who come and roar at you and the snakes that trap you in the night. You have to have this lion and the tigers to be seen. They are within us. And the snakes and the scorpion that come out of you and bite others, please look after them. See that you become a beautiful person and not that you run after something that is power or materialism. It stirs me completely sometimes when I see the disparity between the beauty of the people of these simple villages and the cunning and the domination of the city people. And sometimes I feel I should give up all the cities and ask them to jump in the hell if they do not know how to behave. I think the whole thing has come to me because Durvasa's example I see very clearly. How many of you would be willing to do that kind of a penance that Durvasa had to do? But Durvasa, being a great seeker, a real seeker, felt that I have done nothing so far after my realization. Only my temper, my showing off, that I am to be a great person here and there, wherever I go, everybody should dance after me. And he got cursed and he had to come here.
the son of Shakuntala was a great child called Bharat. After that great son of Shakuntala, this country is called as Bharat because he was a saint and he ruled the country as a benevolent king. He occupied the whole of this country, even Pakistan and Burma inclusive, and was the ruler of all this country, a very benevolent, humble, and a very great, highly evolved soul. That's why this country, the whole country, has the name of Bharat from him. So in a way that we should really understand that when Durasa saw that the cursed Shakuntala produced such a great soul, suffering because of its curses, because her husband forgot about her, he never recognized her. When she went to her husband, he never recognized her, and she had to live without her husband, and this child was born. And then suddenly he remembered, because the ring he had given was lost in the water and a fish had gulped it down, and the same fish was caught, and when they found the ring, he remembered all that had passed. Then he sent for her and called her, and then the king Bharat ruled this country. That's how we are called as Bharati. That is the symbol of a personality that is an Indian. We are Indians, and Indians have a great symbol of Bharata before them, and that's how we have to lead a life of saintliness. You may be king, you may be street beggar, you may be anything, but for an Indian it is important to lead a life of complete dedication and complete renunciation. He has to lead an austere life, controlling his attention. He has to control his attention and tell the attention not to go to wrong places. These heights which these people have achieved through their innocence, you will have to achieve through your understanding. That's the first step you have to cross after realization. They'll get realization and will jump into the kingdom of God. I won't have any problem with them. Let me come and stay here for a month and you will see this area will be all charmed. But what about us, the rest of us who think no end of themselves? That's why I spoke in English language today, for you people to understand that this English language itself has given this terrible ego, like a pump, it goes into your head and you start thinking no end of yourself. How many are going to meditate from tomorrow? How many are going to get up in the morning and give up their rooms and come out and meditate? Go into the wild just thinking that you belong to this nature. We have to have a very rigorous disciplining, self-disciplining of ourselves. Otherwise, it's useless to waste energy on people who have no value, no respect for their realization, for themselves. I have to tell you that you have come here is very good. Now see the ashram life. Now don't try to find faults with this ashram didn't have this, ashram didn't have that, we had no place to sleep, we had no place for a bathroom. Please don't do all those things. You have not come here to enjoy a 5-star hotel. For that you have not come all the way here. Please, for heaven's sake, don't have that. On the contrary, I'll be happy if you can sleep outside in the cold and go through it. I can do it. I can sleep in any conditions, anything. Try to make your body your slave and don't make your body stand on your heads. I have to make a very humble request because there are some people who are quite fuss spots. I was told even from Delhi, and I expect no fussing here, no fussing here. Try to understand. It's a great chance for you to ascend or to descend, one of the two. So please try to ascend above your body. Try to mold your body in such a way that it becomes your slave, and then you will enjoy having this body. Otherwise it's a headache to have a body like this. आज के शुभ अवसर पे हम यहाँ आए हैं। आज देवी का सप्तमी का दिन है। सप्तमी के दिन देवी ने अनेक राक्षसों को मारा, अनेक दुष्टों का नाश किया, विध्वंस कर डाला था। क्योंकि संत साधु जो यहाँ पर बैठे हुए तपस्या में संलग्न थे, उनको ये लोग सताते थे।
हम लोग सोचते हैं कि माँ ये क्यों क्यों इतनी इन्होंने तपस्या की, इनको क्या ज़रूरत थी इतनी पेनांस करने की, इतनी तपस्या करने की। वजह ये कि तब मनुष्य का तबका बहुत नीचा था, लेकिन आँख बहुत उन्नत थी। वो सोचते थे कि हम इस शरीर से उस आत्मा को प्राप्त कर लें, इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत की और इस स्थान में बैठ करके इतनी तपस्विता करी। आज उन्हीं की कृपा से हम लोग आज इतने ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं, उन्हीं की कृपा से हमने पाया हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस सहयोग को समझ लें कि हमारे लिए एक बड़ी भारी देन हो गई, कोई हम बड़े ग्रेट पीपल हैं जिनको कि भगवान ने वरण कर लिया, वी आर चोजन पीपल, और इस तरह की बातें सोचने वाले लोगों को मैं बताती हूँ बड़ा धक्का बैठेगा। ये देखेंगे कि जो लोग यहाँ पे भोले भाले हैं, जो यहाँ सीधे सरल हैं, जो स्वभाव से अत्यंत सुंदर हैं, ये सबसे पहले आकाश की ओर उठेंगे और बाकी सब यहीं धरातल पे बैठे रहेंगे। जितनी जड़ वस्तु है सब यहीं रह जाएगी। इसलिए सिर्फ आपका रियलाइजेशन होना पूरी बात नहीं है। मैं यही बात अंग्रेजी में कह रही थी, वही बात आपसे कह रही हूँ। इस शुभ अवसर पे ये जानना चाहिए कि परमात्मा ने अपनी सारी शक्तियाँ आपके सुरक्षा के लिए, आपके क्षेम के लिए, आपके अच्छाई के लिए लगा रखी। पूर्णतया परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, पूर्णतया वो आपको देखना चाहते हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए। उसका अभिवादन है एक तरह से कि आप अपने पिता के घर आइए और आकर के वहाँ पर आनंद से बैठिए। लेकिन उस लायक तो होना चाहिए। अगर हम उस लायक नहीं हैं तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं? हमारी लियाकत हमें देखनी चाहिए कि क्या है। सबसे पहले बात है आप पिता के घर आए। मैं भी आज अपने पिता के घर आई ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि हिमालय मेरा पिता है। आते ही साथ सबसे पहले जो भावना मेरे अंदर उमड़ी वो मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ऐसा सोचती हूँ कि जैसे कि आज मेरे पिता के गौरव का मुझे एक बड़ा अच्छा समय मिल गया है, बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि समय मैं अपने पिता के गौरव की गाथाएं लोगों से कहूँ कि इस पर आकर जिन्होंने भी तपस्याएं करी उन्होंने कहाँ से कहाँ अपनी उन्नति कर ली। इस हिमालय को देख करके जिन्होंने उच्चतम स्थिति प्राप्त करी उन्होंने न जाने कहाँ से कहाँ अपने को उठा लिया। ये सहस्त्रार जो पृथ्वी ने आपके लिए बनाया हुआ, इस सहस्त्रार की पूजा होनी चाहिए। ये सहस्त्रार बहुत ऊंची चीज़ है, आपको पता नहीं इसमें से चैतन्य की लहरियाँ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं कि नहीं, पर मुझे चारों ओर सिर्फ चैतन्य के और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चारों ओर चैतन्य ही चैतन्य है और इसमें रहने वाले लोग भी उस चैतन्य में ऐसे लिपटे हुए हैं, ऐसे समाये हुए हैं कि मानो जैसे कि सागर में मछलियाँ तैर रही हो। कोई भी उनमें और उनमें भेद नहीं रहा। जो पानी है उसी का उपयोग जैसे मछलियाँ अपने तैरने के लिए कर रही हैं। ये जो चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ है इतना यहाँ सुंदर और इतना मनोरम है कि उसका वर्णन मैं वाकई शब्दों में नहीं कर सकती। और ये सारी हिमालय की कृपा है, हिमालय की कृपा है। हिमालय सर्वप्रथम सोचिए कि हम लोग सागर को अपना गुरु मानते हैं, सागर हमारा पिता है। और सागर जब सारा मैल छोड़ छाड़ करके दुनिया की सारी गंदगी उसके अंदर जब गिरती है उसे नीचे छोड़ करके और जब वो आकाश में बादल की तरह उठता है तब वो बिल्कुल निष्पाप सुंदर शुभ्र ऐसा बहता बहता इस हिमालय के चरणों में जब आता है तब वो यहाँ पर हिम बन के छा जाता है। शब्द भी धवल है। धवल माने अतिशय शुभ्र, अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत निर्मल। ऐसी जो ये धाराएं हैं ऐसी ही धाराएं इस हिमालय में ही बह सकती। ये धाराएं वही है जो हमारे मस्तिष्क में भी बहती हैं और जिसके सहारे हमारा सहस्त्रार प्रज्वलित होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या कहना चाहिए और क्या क्या नहीं ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना ही बताती हूँ
कि आज की जो यहाँ की एक आपको बहुत अच्छी संधि मिली है, एक शुभ अवसर मिला है, उसकी गहराई में उतरने का प्रयत्न करें, उसकी महानता में उतरने का प्रयत्न करें और ये सोचें कि हम इसके सामने एक अकिंचन, एक छोटे से क्षुद्र जीव, हमारे अंदर ऐसी कोई सी भी विशेषता नहीं है जो हम इस हिमालय के सामने अपने को उद्दामता से देख सकें। हम हैं ही क्या, तो महान चीज़ है। और ये सहस्त्रार, सारे सृष्टि का सहस्त्रार यहाँ है। इसने सारे सृष्टि को ही इतना आराम, इतना सुख और इतना आनंद दिया हुआ है कि इससे आगे हमें और कुछ पाने का नहीं। इस सहस्त्रार के सहारे ही मैंने आप लोगों का सहस्त्रार खोला। इसी सहस्त्रार के सहारे मैंने जाना कि जब तक हिमालय की शांति आपके अंदर नहीं आएगी, उसकी शीतलता आपके स्वभाव में नहीं आएगी, तब तक आपका सहस्त्रार खोलना भी व्यर्थ जाएगा। नहीं तो आग की भट्टी के तरह ये सहस्त्रार जलता है। जब मैं देखती हूँ कुछ कुछ लोगों को तो लगता है, हे भगवान, मैंने इनका सहस्त्रार क्या खोल दिया, अंदर से आग की भट्टी जल रही है, अंदर से इतना धुआं और इतनी गंदगी निकल रही है कि अच्छा है इनका फिर से सहस्त्रार बंद ही कर दो। ऐसी भानुमति का पिटारा खुल गया है कि पता नहीं इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकल रही। देखते साथ आश्चर्य होता है कि सांप, बिच्छू, दुनिया भर की जो जो चीज़ें गंदगी है वो सारी उभर करके ऊपर चली आ रही। आज इस हिमालय को याद करके और उन 7 देवियों को याद करके जिन्होंने यहाँ पर बहुत पराक्रम किए हुए हैं, हमको याद करना चाहिए कि हमारे पास भी दैवी शक्ति है और उस दैवी शक्ति को पूर्णतया हम एक माँ से प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए जो माँ का स्वरूप है, उस स्वरूप को लेते हुए हम हिमालय के शरणागत हों। आप दूसरों की ओर नज़र न रखें, अपनी ओर नज़र रखें। लोग दूसरों को सोचते हैं, ये सोचते हैं वो आदमी खराब है, दैट मैन इज़ नॉट गुड, दैट फेलो इज़ नॉट गुड। व्हाट अबाउट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ। सबको अपने को देखना, दूसरों को नहीं देखना। ये आदमी ये नहीं करता, वो आदमी वो नहीं करता, आप क्या कर रहे हैं उसे देखिए। ये हिमालय ये नहीं देखता, हिमालय ये नहीं देखता कि दुनिया ने उनके साथ क्या किया, कितनी ज्यादती करी है। वो ये देखता है कि उसे क्या देना है, उसे क्या मेहनत करनी है, किस तरह से लोगों को प्लावित करना है, किस तरह से उनका सर्जन करना है। इस हिमालय की चोटी से ही हमने अपनी सुरक्षा पाई, इसी से हमने अपने गंगा, जमुना और सरस्वती की धाराएं पाई हुई। ये तीनों धाराएं हमारे अंदर अविरल बहती रह रही। हालांकि उसमें हम हर तरह की गंदगी डालते हैं, हर तरह से उसकी उपेक्षा करते हैं, हर तरह से उसका अपमान करते हैं, तो भी हिमालय सतत अपनी स्वच्छता उसके अंदर बहाते रहता है। लेकिन सब चीज़ों का अंत होने वाला है, इस तरह की चीज़ें और अधिक चलने वाली नहीं। सब लोग इसको याद रखें कि मैं आपकी ज़बान में मधुरता पाऊँ, आपके बातचीत में मिठास पाऊँ, आपके व्यवहार में सुरुचि पाऊँ। मैं इस चीज़ को अब माफ़ नहीं करूँगी, इसको आप जान लीजिए। ये करना महापाप है। किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए दुख देना बहुत बुरी बात है। कृपया एक दूसरे का आदर करिए। आप सहयोगी हैं, दूसरे भी सहयोगी हैं। आज आप किसी पद पर हैं, दूसरा नहीं। ये पद आपने पाया हुआ नहीं, हमने दिया हुआ है, और जब चाहें इस पद से आपको हम हटा सकते हैं। इसलिए आप मेहरबानी से इसके योग्य बने, नम्रतापूर्वक इसे करें। कितने लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि माँ हम आप ही के लेक्चर में आएंगे और हम आपके सेंटर पे नहीं जाएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हज़ारों लोग मेरे लेक्चर में आते हैं और क्यों ऐसे खो जाते हैं। तो क्या आप बीच में एक शैतान बन के बैठे हुए हैं?
कृपया मेरी बात की ओर ध्यान दें और सब अपनी ओर देखें, दूसरों की ओर नहीं। हमने ऐसा किया है क्या? हमने ऐसा किया क्या? हमने ऐसा किया? तब आप जानेंगे, जब आप इस चीज़ को समझ लें, जब आप अपनी ही गलती को देखेंगे तभी तो ना आप ठीक कर पाएंगे, और तभी आप इस हिमालय की महानता को जानेंगे। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपके अंदर न वो संवेदना है, नहीं वो आँखें हैं, नहीं वो समझ है, नहीं वो सूझबूझ है कि आप इसे समझ पाए कि ये क्या चीज़ है जहाँ आप बैठे हुए, किसकी गोद में आप आए हुए। जिसके गोद में हम रहें, पले बड़े हुए, वही ये महान पिता हमारा है। इसका आप मान रखिए और इनके सामने नतमस्तक हो करके ये सिद्ध करके दे कि जो हमने कार्य किया वो किसी काम का रहा, बेकार का नहीं रहा। इसी प्रकार इन 7 देवियों का आशीर्वाद आप कर अनंत रहेगा। ये आपकी मौसियाँ समझ लीजिए, ये सारी आपको देखभाल कर, कहते हैं कि माँ मर जाए पर मौसी जी है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मौसी जो होती है वो बच्चे को बहुत दुलार से रखती है, उसको संभालती है, उसकी रक्षा करती है, उसको पूरी तरह से रंजित रखती है, उसका हमेशा मनोरंजन करती है। हर एक तरह की छठियाँ यहाँ आप देखते हैं, छठी है, कभी आप देखते हैं कि छवि घूम रही, कभी आकाश में बहुत सारे बादल आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर से आप देखते हैं कि हर समय रंग बिरंगे वहाँ पर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। ये सब उनके खेल चल रहे हैं आपको सुंदरता से भरने के लिए। इसी प्रकार आप भी एक सुंदर अच्छे व्यक्ति बने। यहाँ पर बहुत कुछ कमाने का है। अब देखना है कि इस शांति के कुंड से निकल करके आप कितने सुंदर होते हैं। आज की पूजा में बहुत महत्व है और हो सकता है कि इस पूजा में बहुत लोग बहुत कुछ पा लेंगे, लेकिन अपने चित्त को स्थिर करें और चित्त में पहले शांति की आराधना करके कि माँ हमें आप शांति दीजिए, शांति की मांग करें जिससे आप दुनिया में शांति फैलाएं। तब आनंद आता है। आनंद शांति के बगैर नहीं आ सकता। How would you like the puja? क्या करें? How would you like the puja to be conducted? वो कोई है या करने वाला? Mr. Pattern person. Pattern person. तुम्ही असं करा, आधी अथर्व शीर्ष म्हणायचं आणि पायावर पाणी घालून पाय धुवून घ्या आणि त्याच्यानंतर आपण जशी देवीची पूजा करतो 108 नावं घेऊन ती करायची, बस जास्त नको. पण मुख्य असं आहे पूजेमध्ये ध्यानच असायला पाहिजे. You must be in dhyan today. You must be in meditative mood. It will work out tremendously. I know it will work out because I've really tried to first of all curb you down, and after curbing you down, I think you people should ascend because many things have fallen off with my talk. Now don't try to gather them and go back to them and try to justify. Try to be without them. Who should come to wash the feet? ये बस ऐसा करिए कि What about the boy from the dress? उनको करने को नहीं करना चाहिए. Local boy from Dharamshala. ये बच्चों से करवाइए. Kamal. आप लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे कराइए. इधर तो रखने की जगह नहीं, ऊपर रख देते हैं. ये जरा पीछे ले लो तलवार वाला. एक तरफ रख लो. ये गर्म पानी दें. उस तरफ मत, इस तरफ तुम्हारी तरफ. यहाँ पे और गड़बी में डाल दो. और ये सब कहाँ से आए? ये गोरखों का होता है ना, कुकरी. हाँ उससे वो. हाँ. और वो नीचे वाला वो जो त्रिशूल है. हाँ, तलवार. ये तलवार है राजपूत राइफल्स की.
जनरल साहब ने भेजी है खास दिल्ली से। और ये कुकरी है। दोनों कुकरियाँ? नहीं, एक कुकरी है, एक छोटा डैगर। बच्चों से कहो पानी से हाथ लगा के दो, पहले पानी डाल दो काफी। अथ गणपत्यर्थ शीर्ष व्याख्या। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं। नहीं, थांबा थांबा, इसके मुंह पे रख, जवळ ठेवा। दार बंद करून घ्या, थंडी बसेल तुम्हाला। गणपति हेलो हेलो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं श्रुतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् आवानुचानमो शिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयस्त्वं त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि नैमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादि पूर्वमुच्चार्यं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरा अर्धेन्दुलिसित तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दुरोत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धि सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निच्युत गायत्री छंदा गणपतिर्देवता
ओम गंगणपतये नमः। एकदंताय विघ्नये वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् अविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरा। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदभूतये नमः। एतद् ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। साथ जो धर्मशाला स्कूल की टीचर्स हैं और तोतारानी ग्राम की लेडीज हैं वो आ जाएं।
सिर्फ लेडीज आ जाओ। और 3 और ये छोटी लड़की और जो आपकी उसको भी हाँ हाँ चार ही है? नहीं 3 और शार्ट नंबर पानी देखे। अब हम श्री देवी के 108 नाम कहने वाले हैं। तो जब हम श्री माता कहेंगे तब आप पीछे तो ओम त्वमेव साक्षात् श्री माता नमो नमः। ऐसे आपको कहना होगा पीछे से। ओम श्री माता ओम त्वमेव साक्षात् श्री माता नमो नमः। श्री महाराज्ञी ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाराज्ञी नमो नमः। देव कार्य समुद्यता ओम त्वमेव साक्षात् श्री देव कार्य समुद्यता नमो नमः। श्री अकोला ओम त्वमेव साक्षात् श्री अकुला नमो नमः। श्री विष्णु ग्रंथि विभेदिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु ग्रंथि विभेदिनी नमो नमः। श्री भवानी ओम त्वमेव साक्षात् श्री भवानी नमो नमः। श्री भक्ति प्रिया ओम त्वमेव साक्षात् श्री भक्ति प्रिया नमो नमः। श्री भक्ति गम्या ओम त्वमेव साक्षात् श्री भक्ति गम्या नमो नमः। श्री शर्मदायिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री शर्मदायिनी नमो नमः। श्री निराधारा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निराधारा नमो नमः। श्री निरंजना ओम त्वमेव साक्षात् श्री निरंजना नमो नमः। श्री निर्लेपा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्लेपा नमो नमः। श्री निर्मला ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला नमो नमः। श्री निष्कलंका ओम त्वमेव साक्षात् श्री
निष्कलंका नमो नमः। श्री नित्या ओम त्वमेव साक्षात् श्री नित्या नमो नमः। श्री निराकारा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निराकारा नमो नमः। श्री निराकुला ओम त्वमेव साक्षात् श्री निराकुला नमो नमः। श्री निर्गुणा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्गुणा नमो नमः। श्री निष्कला ओम त्वमेव साक्षात् श्री निष्कला नमो नमः। श्री निष्कामा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निष्कामा नमो नमः। श्री निरुपप्लवा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निरुपप्लवा नमो नमः। श्री नित्यमुक्ता ओम त्वमेव साक्षात् श्री नित्यमुक्ता नमो नमः। श्री निर्विकारा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विकारा नमो नमः। श्री निराश्रया ओम त्वमेव साक्षात् श्री निराश्रया नमो नमः। श्री निरंतरा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निरंतरा नमो नमः। श्री निष्कारणा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निष्कारणा नमो नमः। श्री निरुपाधिः ओम त्वमेव साक्षात् श्री निरुपाधिः नमो नमः। श्री निरीश्वरा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निरीश्वरा नमो नमः। श्री नीरागा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निरागा नमो नमः। श्री निर्मदा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मदा नमो नमः। श्री निश्चिंता ओम त्वमेव साक्षात् श्री निश्चिंता नमो नमः। श्री निरहंकारा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निरहंकारा नमो नमः। श्री निर्मोहा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मोहा नमो नमः। श्री निर्ममा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्ममा नमो नमः। श्री निष्पापा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निष्पापा नमो नमः। श्री निःसंशया ओम त्वमेव साक्षात् श्री निःसंशया नमो नमः। श्री निर्भवा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्भवा नमो नमः। श्री निर्विकल्पा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विकल्पा नमो नमः। श्री निराबाधा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निराबाधा नमो नमः। श्री निर्नाशा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्नाशा नमो नमः। श्री निष्क्रिया ओम त्वमेव साक्षात् श्री निष्क्रिया नमो नमः। श्री निष्परिग्रहा ओम त्वमेव साक्षात् श्री निष्परिग्रहा नमो नमः। श्री निस्तुला ओम त्वमेव साक्षात् श्री निस्तुला नमो नमः। श्री नीलचकुरा ओम त्वमेव साक्षात् श्री नीलचकुला नमो नमः। श्री निरपाया ओम त्वमेव साक्षात् श्री निरपाया नमो नमः। श्री निरत्यया ओम त्वमेव साक्षात् श्री निरत्यया नमो नमः। श्री सुखप्रदा
ॐ तमेव साक्षात् श्री सुखप्रदा नमो नमः। श्री सांद्र करुणा ॐ तमेव साक्षात् श्री सांद्र करुणा नमो नमः। श्री महादेवी ॐ तमेव साक्षात् श्री महादेवी नमो नमः। श्री महापूज्या ॐ तमेव साक्षात् श्री महापूज्या नमो नमः। श्री महापातक नाशिनी ॐ तमेव साक्षात् श्री महापातकनाशिनी नमो नमः। श्री महाशक्ति ॐ तमेव साक्षात् श्री महाशक्ति नमो नमः। श्री महामाया ॐ तमेव साक्षात् श्री महामाया नमो नमः। श्री महारथी ॐ तमेव साक्षात् श्री महारथी नमो नमः। श्री विश्वरूपा ॐ तमेव साक्षात् श्री विश्वरूपा नमो नमः। श्री पद्मासना ॐ तमेव साक्षात् श्री पद्मासना नमो नमः। श्री भगवती ॐ तमेव साक्षात् श्री भगवती नमो नमः। श्री रक्षाकरी ॐ तमेव साक्षात् श्री रक्षाकरी नमो नमः। श्री राक्षसग्नि ॐ तमेव साक्षात् श्री राक्षसग्नि नमो नमः। श्री परमेश्वरी ॐ तमेव साक्षात् श्री परमेश्वरी नमो नमः। श्री नित्य यौवना ॐ तमेव साक्षात् श्री नित्ययौवना नमो नमः। श्री पुण्यलभ्या ॐ तमेव साक्षात् श्री पुण्यलभ्या नमो नमः। श्री अचिंत्य रूपा ॐ तमेव साक्षात् श्री अचिन्त्य रूपा नमो नमः। श्री पराशक्ति ॐ तमेव साक्षात् श्री पराशक्ति नमो नमः। श्री गुरुमूर्ति ॐ तमेव साक्षात् श्री गुरुमूर्ति नमो नमः। श्री आदिशक्ति ॐ तमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति नमो नमः। श्री योगदा ॐ तमेव साक्षात् श्री योगदा नमो नमः। श्री एकाकिनी ॐ तमेव साक्षात् श्री एकाकिनी नमो नमः। श्री सुखाराध्या ॐ तमेव साक्षात् श्री सुखाराध्या नमो नमः। श्री शोभना सुलभागति ॐ तमेव साक्षात् श्री शोभना सुलभागति नमो नमः। श्री सच्चिद आनंद रूपिणी ॐ तमेव साक्षात् श्री सच्चिदानन्दरूपिणी नमो नमः। श्री लज्जा ॐ तमेव साक्षात् श्री लज्जा नमो नमः। श्री शुभकरी ॐ तमेव साक्षात् श्री शुभकरी नमो नमः। श्री चंडिका ॐ तमेव साक्षात् श्री चण्डिका नमो नमः। श्री त्रिगुणात्मिका ॐ तमेव साक्षात् श्री त्रिगुणात्मिका नमो नमः। श्री महती ॐ तमेव साक्षात् श्री महती नमो नमः। श्री प्राण रूपिणी ॐ तमेव साक्षात् श्री प्राणरूपिणी नमो नमः। श्री परमाणु ॐ तमेव साक्षात् श्री परमाणु नमो नमः।
श्री पाशहंत्री ॐ तमेव साक्षात् श्री पाशहन्त्री नमो नमः। श्री वीरमाता ॐ तमेव साक्षात् श्री वीरमाता नमो नमः। श्री गंभीरा ॐ तमेव साक्षात् श्री गंभीरा नमो नमः। श्री गर्भिता ॐ तमेव साक्षात् श्री गर्भिता नमो नमः। श्री क्षिप्र प्रसादिनी ॐ तमेव साक्षात् श्री क्षिप्रप्रसादिनी नमो नमः। श्री सुधाश्रुति ॐ तमेव साक्षात् श्री सुधाश्रुति नमो नमः। श्री धर्माधारा ॐ तमेव साक्षात् श्री धर्माधारा नमो नमः। श्री विश्वग्रासा ॐ तमेव साक्षात् श्री विश्वग्रासा नमो नमः। श्री स्वस्था ॐ तमेव साक्षात् श्री स्वस्था नमो नमः। श्री स्वभाव मधुरा ॐ तमेव साक्षात् श्री स्वभावमला नमो नमः। श्री धीर समर्चिता ॐ तमेव साक्षात् श्री धीरसमर्चिता नमो नमः। श्री परमोदारा ॐ तमेव साक्षात् श्री परमोदारा नमो नमः। श्री शाश्वती ॐ तमेव साक्षात् श्री शाश्वती नमो नमः। श्री लोकातीता ॐ तमेव साक्षात् श्री लोकातीता नमो नमः। श्री क्षमात्मिका ॐ तमेव साक्षात् श्री क्षमात्मिका नमो नमः। श्री लीला विनोदिनी ॐ तमेव साक्षात् श्री लीला विनोदिनी नमो नमः। श्री सदाशिव ॐ तमेव साक्षात् श्री सदाशिव नमो नमः। श्री पुष्टिः ॐ तमेव साक्षात् श्री पुष्टिः नमो नमः। श्री चंद्रनिभा ॐ तमेव साक्षात् श्री चन्द्रनिभा नमो नमः। श्री रवि प्रख्या ॐ तमेव साक्षात् श्री रविप्रख्या नमो नमः। श्री पावनाकृतिः ॐ तमेव साक्षात् श्री पावनाकृति नमो नमः। श्री विश्वगर्भा ॐ तमेव साक्षात् श्री विश्वगर्भा नमो नमः। श्री चित्शक्तिः ॐ तमेव साक्षात् श्री चित्शक्तिः नमो नमः। श्री विश्वसाक्षिणी ॐ तमेव साक्षात् श्री विश्वसाक्षिणी नमो नमः। श्री विमला ॐ तमेव साक्षात् श्री विमला नमो नमः। श्री वरदा ॐ तमेव साक्षात् श्री वरदा नमो नमः। श्री विलासिनी ॐ तमेव साक्षात् श्री विलासिनी नमो नमः। श्री विजया ॐ तमेव साक्षात् श्री विजया नमो नमः। श्री वंदारू जनवत्सला ॐ तमेव साक्षात् श्री वन्दारू जनवत्सला नमो नमः। श्री सहज योगदायिनी ॐ तमेव साक्षात् श्री सहजयोगदायिनी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिपुरात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री
आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त म्हणे श्री सूक्त। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्ततां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपव्वये श्रियं चन्द्रां प्रवासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायां तरायाश्च बाया अलक्ष्मी उपैतु मां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्वये श्रियं मनसः काममाकुन्तीं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशयतां यश कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्त सिग्धानि चिक्लितवसमे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आव आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आव ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वानविन्देयं पुरुषानहम् यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयाद्याज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् पद्मानने पद्मउरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षियेन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायै गोदायै धनदायै महाधने धनं मे लभतां देवी सर्वकामांश देहि मे पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पाद पद्ममयी सन्निधस्त्व
पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्तश्वादी गवेरथं प्रजानां भवसी माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्नि धनं वायु धनं सूर्यो धनं वसु धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु मे वैनतो सोमं पिबतु उत्तः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिना न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तहं जजेत् सरसिजनिलये सरोजस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदात् शोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नमो देवी नमो देवी नमस्ते सर। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै दात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धै सिद्धै कूर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रुतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिर्देव्यो नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिपुराम्बिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पीछे से पानी पीछे
अपने बाल पीछे बाल बाल भी जरूर बाल भी बनाए थे ना इसमें सब कुछ सहज है। सप्तमी का चंद्रमा आएगा सर, और उनकी 22 दिन लगा और चलिएगा। अभी जरा मुकुट तो बांध ईशा दे दो, ईशा दे दो। Center the crown.
4 हाथ चाहिए। फ्रंट से पूरा फोटो लेना। That is coming from. Take a full photograph. What about the feet? सामने से आप करते हैं। Come forward. If you come here, come here. You take it first, Matthew. Will be all right. Catching somewhere tight. चावल चावल इसका कपड़ा
स्कूल की खड्डी है ना शॉर्ट मतलब यहाँ तो ड्राई फ्रूट्स है, ये अखरोट है, अखरोट रखा, अखरोट यहाँ पर ड्राई because he's taking the camera. He's catching something.
साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। 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 बोलो श्री भगवती माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। 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 बोलो श्री साक्षात दुर्गा माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। ओम त्वमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो
साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय निवासिनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय निवासिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निवासिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री हिमाचल साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमाचल साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमाचल साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सबको अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। इस हिमाचल प्रदेश को भी अनंत आशीर्वाद। गाना वाना गाना तो जब गाओ ये तो कुछ लोग गाने कुछ लोग हार पहनाना, जो लोग हार पहनाना चाहते हैं वो जरा इस साइड में लाइन बना के बाहर से बाहर से लाइन बना के पैर भी छुएंगे। नीचे रावत साहब
बच्चे भंडारी आते जाइए जो लोग हाथ डालना चाहें। वहाँ जाके उसे छोड़ा महाराष्ट्र यायचं ते आणायचं जो लोग हाथ लाए सिर्फ वो ही आए हैं। और हाथ ले जो लोग पैर पर आना चाहते हैं वो पीछे से हाथ ले लीजिए फिर आए। हाथ क्यों हाथ पीछे है Nico, music नहीं आप कैसे हैं? ये उनके भी अच्छी जगह है ना?
क्या